Okay. Yesterday, what we have seen the IEEE 802.4 token bus. Okay. So what we have seen in this case, and we have seen that the arrangement of the network which we have seen in the token bus is the bus topology, and the access levels, which they token bus is the token passing mechanism. Clear? So, what happens in the case of token passing mechanism? In the case of a token passing mechanism, the station, whoever carries the token is allowed to transmit the packet. Yeah. Now, I'm going to tell you one thing now. In the case of your token ring, it is works as like the token bus, but the difference is that the arrangement of the network is in ring format. Yeah. Hello. Now it is audible. Now it is audible. Now it is audible. Yeah. Okay. What I discussed, in the case of a token ring, it is works like a token bus only, but the arrangement of the network, अगर आपको दिख रहा है, if you are able to see this slide, it is the arrangement of the network. It is in ring format. Clear? Whatever the purple rounds are there, these are nothing but your stations. Fine. And the green color, it is the token. The station whoever carries the token is allowed to transmit. But the difference is that in the case of your token ring, that is the standardization given by the IEEE, it is the 802.5. So token bus का क्या था 802.4. But in the case of your token ring, the standardization number given by the IEEE is 802.4. For the token ring is 802.5. Clear? Now, what is the difference here? The difference is that a token ring works like a client server mechanism. What is now, you are going to ask me what is client server mechanism? See, so the priority, they have decided the priority. So priority means what? They have given the server. If server has as a station, as a source, if there is a server, they have given the highest priority to that server, and they have given lower priority to the client stations. Clear? And because of that, whoever having the highest priority is allowed to transmit the packet first. That much only. यहाँ पे क्या बताया मैंने? सर्वर को अगर आपका ट्रांसमिशन अगर आपके नेटवर्क पे इफ देयर इज सर्वर एज वेल एज क्लाइंट दोनों चीजें हैं, तो सर्वर को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है रेदर क्लाइंट. क्लियर? सो whoever having the highest priority is allowed to transmit, is allowed to hold the token as, and whoever is allowed to hold the token is allowed to transmit the packet. Now that much difference it is with the token bus. Any query? Any query? Yes or no? Okay. Now, two minutes. Now, if you see here, the whatever the tokens, whatever the that passing of token, it is in unidirectional method, unidirectional. Okay. So whatever the data, because token we are considered token is a one type of packet. Okay. So whatever the data flow is, it is in the form of unidirectional, and whatever the token which is passing, it is in one way, not in a two way. क्या आप उल्टा नहीं जा सकते अगर आप if you are moving in left to right or right to left, it should be in one way, not in the two way. अब उल्टा नहीं जा सकते. Clear? There's a difference here. Now, next is your frame format. Token ring frame format. Before that, you just draw this diagram for. Before this, you just draw this diagram. Topic name is IEEE 802.5 token ring, and draw this diagram.
Drawn everyone? Shall I move? Okay. So, so this is the frame format of your token ring. Yeah. First you draw and then I'll explain. First you draw. So this frame format is divided into two. So they have divided this frame format into two: data frame and the token frame format. Clear? Under your token frame, only three bits are used, three fields are used for the token frame format, and for the data frame, eight fields are required for the data frame. Draw this diagram. Over, over, over everyone. Okay. See, in the token frame format, what they did, they have divided the frame into two. Clear? So, in what way they have divided? They have divided in this way. Your SFD, that is SFD full form is start frame delimiter. AC is your access control, and ED, it is your end डिलिमिटर. बिकॉज अगर स्टार्टिंग अगर बताते हो कि फ्रेम का स्टार्ट क्या है, आप ये भी बताते हो कि फ्रेम का एंड कहाँ पे है. क्लियर? सो दिस टू थिंग्स दे हैव, इट इज यूज्ड इन द टोकन फ्रेम फॉर्मेट, दिस थ्री थिंग्स. क्लियर? सो बिकॉज अगर आपका पैकेट वट एवर द फ्रेम इज कमिंग और इट इज रोटेटिंग इन द रिंग इन द नेटवर्क, if it is token, तो it requires this three fields कि token का start क्या है, this token carries which type of access control, and what is the end of this token frame. Clear? So this three fields is used for in this case of a token frame, and for the data frame, that is your, this is 8 field. Now, what is start frame delimiter? What is start frame delimiter? So I have already discussed you about this start frame delimiter. It alerts the each station that की token or data frame is coming. बिकॉज कोई भी आ सकता है, नहीं, बिकॉज कैसा है, स्टेशन पे दो चीजें आप रिलीज करते हो, आधे में भी टोकन और एक में भी योर डेटा. क्लियर? तो दोनों चीजें हो सकती है. सो आइदर ऑफ दिस टू, इफ either of these two are released in the network, so it informs each and every station in the network that key token or data is coming, so be ready. So at that time it also defines ki start synchronize with the clock. ठीक है, and this is of one field, one byte. ठीक है, it is of one byte field. Clear? Now second is your access control. Now question for you is, what is access control? What is access control? Clear? So अगर आपको दिख रही है, this access control actually it is of one byte. कितने का है? One byte. And what is that one byte? क्या होता है इस one byte में? Just see here, this is your access control mechanism. तो यहाँ पे क्या दिख रही है? If you're able to see here, the first 3 bit is used for your priority bits.
second, fourth number bit, it is your token bit. Fifth number is your monitor bit, and last three, it is your reservation bits. Clear? Now, I have discussed you about the priority bits. Priority मैंने क्या बताया था कि the station having the highest priority should allowed to hold the token as well as allowed to transmit its packets earlier before the next one, before the lowest level, lowest priority stations. क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, अगर इफ यू आर एबल टू सी हियर कि हम लोग नॉर्मली अगर इफ इन योर नेटवर्क अगर सर्वर भी है, क्लाइंट स्टेशंस भी है, सो वी आर नॉर्मली गिवन हाईएस्ट प्रायोरिटी टू दी स्टेशन, टू दी सर्वर, ना कि क्लाइंट को. हम किसको देते हैं? सर्वर को हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं. तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे योर प्रायोरिटी बिट्स हैविंग दी ओनली 3 बिट्स. प्रायोरिटी बिट के लिए कितना, प्रायोरिटी के लिए कितना बिट दिया है? ओनली 3 bits allocated. So that means what? कितने आप कहाँ से कहाँ तक रेंज आएगा? 0 to 7. Means what? 000 to 111. Clear? Now, the stations, the source having the highest priority, that means 7 or 3 or 2. अगर 3 है highest priority, अगर 3 stations are there, 3 sources are there, clear? Sorry, 3 stations are there in the network, and having the highest priority is allowed to transmit earlier. Clear? Now, what is T? T क्या हो गया? Token bit. Token bit means what? If in this stage, if in this network, if the whatever the frame is moving or whatever the frame is released, if it is the data, if it is not a data frame, if it is a token frame, that means what your T is indicated as 1. And but if your whatever the frame is rotating in the ring network, if it is a data frame, that means what? If it is not a token frame, that means what? T equal to 0. अगर वो फ्रेम, अगर whatever the station ने, अगर whatever the station released, any one of the station अगर एक टोकन या फ्रेम रिलीज करती है, तो अगर वो टोकन है फ्रेम, वो फ्रेम अगर टोकन होती है तो हम उसको क्या इंडिकेट करेंगे? 1. That means what? Whatever is coming, it is a token, not a data. क्लियर? अगर टोकन नहीं है, अगर if it is a data, that means what? टोकन अगर नहीं है तो T equal to 0. Now, next is your monitor. What is AMP? Monitor क्या होता है? Now, just take an example here कि one of the station release one packet. ठीक है? तो यहाँ पे condition कैसा होता है? Whoever release the packet, for example, station 1 ने एक packet transmit किया, only that station allowed to remove that packet from the network. क्या बता रही हूँ? Whoever release the packet in the network allowed to remove that packet from the network. Not जो और other than this, जो पैकेट रिलीज नहीं किया उसको अलाउ नहीं होता वो पैकेट को रिमूव कर, वो रिमूव नहीं कर सकता. जिसने रिलीज किया वही रिमूव कर सकता है, उस नेटवर्क से बाहर हटा सकता है, निकाल सकता है. क्लियर? तो मॉनिटर बिट क्या करता है? जस्ट टेक एन एग्जांपल कि स्टेशन, देयर आर 3 स्टेशंस एंड आउट ऑफ दिस द फर्स्ट स्टेशन हैज रिलीज वन पैकेट. क्लियर? एंड जब वो रिलीज हुआ, जब एक पैकेट जब फर्स्ट टाइम रिलीज होता है तो मॉनिटर उसको 0 इंडिकेट करता है. दैट मीन्स व्हाट? मॉनिटर के पास वो आया ही नहीं है, उसने अभी तक अपना प्रेजेंट ही नहीं दिया कि आई एम कमिंग करके. ठीक है? एम इक्वल टू 0 रहता है उसका. ठीक है? अब कैसे? जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैंने क्या बताया कि जो स्टेशन ने रिलीज किया वही रिमूव कर सकता है. अब वो जब घूम रहे स्टेशन नेटवर्क पे, तब क्या हुआ कि फर्स्ट स्टेशन का नेटवर्क डाउन हो गया. अब क्या है? जब नेटवर्क डाउन हुआ कि वो घूमे जा रहा है, कोई इसको निकाल ही नहीं रहा क्योंकि उसका पहला स्टेशन डाउन हो चुका है नेटवर्क उसका. क्लियर? तो वो क्या करेगा? मॉनिटर सेकंड टाइम जब वो अपना राउंड लेता है तो मॉनिटर विल देखेगा क्या रे ये स्टेशन, ये दिस पैकेट ऑलरेडी इट इज द सेकंड टाइम, इट इज ऑलरेडी आई हैव सीन सेकंड टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम दिस पैकेट आई हैव सीन. दैट मीन्स व्हाट? इसको इसने ऑलरेडी 0 से 1 मार्क किया था कि इसने अपना प्रेजेंट ही लगाया है. तो वो क्या करेगा? It is informed to every station that this is a duplicate packet. ठीक है? बिकॉज क्या है कि वो घूमे क्यों जा रहा है? बिकॉज द स्टेशन जिसने उसको रिलीज किया था दैट इज नेटवर्क गैप्स डाउन, इसके वजह से वो डाउन एंड डाउन मूव किए जा रहे हैं, उसको कोई निकाल नहीं रहा. तो मॉनिटर क्या करेगा? देखेगा क्या ये तो मैंने इसको 0 से 1 मतलब उसने अपना प्रेजेंट ही बताया था, प्रेजेंट ही लगाया था. दैट मीन्स व्हाट? ये पैकेट क्योंकि उसने 0 से 1 किया था, उसको मार्क किया था कि ये पैकेट मुझसे होके गया है, मुझे प्रेजेंट ही दिया है. जब वो सेकंड टाइम जब राउंड ले रहा है तो वो देखेगा कि जब वो सेकंड टाइम जब मॉनिटर के पास जाता है तो क्या बोलेगा मॉनिटर? अरे दिस इज आई हैव मार्क्ड ऑलरेडी, मतलब दिस पैकेट इज कम्स ट्वाइस,
मतलब ये घूमे जा रहा है, इसको कोई निकाल नहीं रहा. So based on this, monitor informs every station that it is packet, it is the duplicate packet. Clear? Any query? Any query? Any query? Any query in it? इस पे क्वेरी है मॉनिटर बिट का. ओके ना. अब ये रिजर्वेशन बिट क्या है? ठीक है, रिजर्वेशन बिट और प्रायोरिटी बिट वर्क इन दिस वे. आई विल शो यू. जस्ट टेक एन एग्जांपल. आपको डायग्राम दिख रही है? या सी देयर आर 3 स्टेशन. ठीक है, ये आपका जो बाहर अंदर का जो गोल आप देख रहे हो, दिस इज अ रिंग नेटवर्क. ठीक है, इस पे 3 स्टेशन आते हैं, 1 2 3. ये 3 क्या है? 1 2 3 इट इज द प्रायोरिटी. प्रायोरिटी के बेसिस पे हम लोगों ने नंबरिंग किया. द स्टेशन हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी इज अलाउड टू ट्रांसमिट फर्स्ट. क्लियर? तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है? दिस स्टेशन जिसपे 3 लिखा है. तो प्रायोरिटी के बेसिस पे हम नंबरिंग करते हैं. इफ इट इज सर्वर और क्लाइंट अगर ज्यादा है, अगर अपने को ने उसको ज्यादा प्रायोरिटी दिया है, तो वो ही उसको अलाउ करता है कि आप टोकन होल्ड कर सकते हो. ठीक है, अब जस्ट टेक एन एग्जांपल कि स्टेशन नंबर 1 इज अलाउड इज वांट्स टू ट्रांसमिट दिस डेटा. क्लियर? तो क्या करेगा? टोकन एक आप देख रहे हो टी, इस पे अपना 1 डालेगा एंड अपने डेटा टोकन टी पे वो क्या करेगा? अपने होल्ड करेगा टोकन को और अपने डेटा को डी करके इसके आगे 1 डालेगा. ठीक है, अब वो क्या होगा? जब वो सेकंड को जाएगी, ये डेटा पैकेट जब सेकंड को जाएगी, तो सेकंड देखेगा कि अरे मुझे भी ट्रांसमिट करना है, आई ऑल्सो वांट टू ट्रांसमिट. सो एज इट इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, इज दिस हैविंग द हायर प्रायोरिटी एज कम्पेयर टू दी और फर्स्ट स्टेशन, तो वो क्या करेगा? 1 को हटा के अपने यहाँ पे 2 लिखेगा. क्लियर? तो क्या करेगा? 1 को हटा के यहाँ पे 2 लिखेगा, बिकॉज वो कर सकता है. बिकॉज वाई? बिकॉज इट इज हायर देन योर फर्स्ट स्टेशन, बिकॉज इट इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी एज कम्पेयर टू योर 1. क्लियर? अब ये सेम डेटा जब थर्ड को जाएगा, वो भी सोचेगा कि ओके आई ऑल्सो वांट टू ट्रांसमिट द पैकेट. तो क्या करेगा? इट इज हैविंग दैट मच, इसको इतना एक्सेस दिया जाता है कि वो ये 2 हटा के 3 कर सके यहाँ पे. क्लियर? अब ये क्या होता है? जब वो 3 पैकेट यहाँ पे जाएगा, तो बिकॉज सबसे पहले सोर्स कौन ट्रांसमिट करने जा रहा था? 1 ट्रांसमिट करने वाला था, बिकॉज यही टोकन को होल्ड किया हुआ था. क्लियर? तो क्या देखेगा? इस चीज को देखेगा, डी और 3 वो देखेगा अरे मुझसे ज्यादा अगर प्रायोरिटी ने बोला है कि मुझे ट्रांसमिट करना है, तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई हैव टू गिव द टोकन टू द थर्ड वन. बिकॉज क्या है कि जो 3 यहाँ पे लिखा है, दैट इज दिस स्टेशन हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो मैं कुछ नहीं कर सकता. आई हैव टू पास दिस टोकन टू द थर्ड, बिकॉज अनटिल अनलेस वो ट्रांसमिट पहले ना करे, मैं ट्रांसमिट नहीं कर सकता. बिकॉज उसने पहले, बिकॉज हाईएस्ट प्रायोरिटी ने अपना रिजर्वेशन लगा दिया है. तो ये 3 क्या है? रिजर्वेशन. क्लियर? रिजर्वेशन. तो अभी क्या होगा? 1 क्या करेगा? उसके पास टोकन था, वो क्या करेगा? यहाँ पे टी के सामने वो अपने यहाँ पे 1 को हटा के 3 करेगा. क्यों? क्योंकि क्या है? बिकॉज हाईएस्ट प्रायोरिटी ने प्रायोरिटी स्टेशन ने बोला है कि मुझे ट्रांसमिट करना है. तो ये टोकन क्या करेगा? घूम घूम के 3 नंबर पे जाएगा एंड थर्ड स्टेशन सॉ कि अरे ये तो मेरा ही टोकन है, मेरा ही नंबर का है, तो आई कैन ट्रांसमिट. तो एट दैट टाइम थर्ड स्टेशन फर्स्ट ट्रांसमिट दी डेटा, इज अलाउड टू ट्रांसमिट दी इट्स डेटा, एंड आफ्टर दैट अगर सेकंड को ट्रांसमिट करना है तो सेकंड पहले हुआ, उसके बाद फर्स्ट. So in this way, your reservation and priority bits work. Any query? Any query? Any query in it? Any query in it? Okay. So this is your access control. ठीक है? तो ये क्या हो गया आपका? एक्सेस कंट्रोल, which having the 8 bit में से प्रायोरिटी बिट, 3 bits are for allotted for the priority bit, 1 bit for your token, 1 bit for your monitor, and last 3 bit is used for your reservation bit. Reservation means what? किसने रिजर्व किया है टोकन को? Who reserved the token earlier? So normally क्या रहता है? The priority having the station having the highest priority which allowed to reserve that token and allowed to transmit earlier. Clear? So now अभी कैसा है? अभी थर्ड क्या है? फ्रेम कंट्रोल. फ्रेम कंट्रोल क्या होता है? फ्रेम कंट्रोल पे क्या होता है? I'll show you.
दिस इज योर फ्रेम कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहती है आपकी, अगर इफ इट इज योर डेटा फ्रेम, अगर आपका जो स्टेशन जो नेटवर्क पे जो फ्रेम घूम रहा है, इफ इट इज योर डेटा फ्रेम, तो उसके आप कैसे पता चलेगा स्टेशन को, अगर आपकी और फर्स्ट 2 बिट्स इज 0 0, क्लियर। बट अगर ये डेटा फ्रेम नहीं हो के अगर इफ इट इज अ कंट्रोल फ्रेम, तो कैसे पता चलेगा, इफ योर फर्स्ट 2 बिट इज योर 1 1, क्लियर। क्या बता रही हूँ, इफ इट इज योर डेटा फ्रेम यू आर नॉर्मली इंडिकेटिंग, कैसे पता चलेगा, इफ योर फर्स्ट 2 बिट इट इज योर 0, एंड इफ इट इज योर कंट्रोल फ्रेम इट्स यू हैव इंडिकेटेड दी बाय यूजिंग 1 1 हियर, क्लियर। क्या अलॉट करोगे यहाँ पे 1 1। नाउ अब क्या है, ये फर्स्ट 2 बिट का बिकॉज फ्रेम कंट्रोल इट इज ऑफ 1 बाइट, पहले 2 से तो पता चल गया आपका डेटा फ्रेम है क्या कंट्रोल फ्रेम। व्हाट अबाउट द अदर, तो अदर डिफाइंस योर टाइप्स ऑफ कंट्रोल, किस तरह का कंट्रोल है। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल किस तरह का हो सकता है, टेक एन एग्जाम्पल कि अगर एक स्टेशन डाउन हो गया तो इट इन्फॉर्म्स, नेटवर्क इन्फॉर्म्स द एवरी स्टेशन की इसमें से एक स्टेशन डाउन हो चुका है। तो दिस टाइप ऑफ कंट्रोल, different types of control mechanisms, अगर the control mechanism different types of controls they have, जब कंट्रोल फ्रेम रिलीज किया जाता है उसके साथ कौन सा कंट्रोल किस तरह का कंट्रोल है वो भी बताया जाता है। बट ये हो गया कंट्रोल फ्रेम का। बट व्हाट अबाउट इन द केस ऑफ डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम का तो कंट्रोल का कोई रिलेशन नहीं है। अब अगर यहाँ पे 0 0 डालते हो उससे तो पता चल गया कि डेटा फ्रेम है। व्हाट अबाउट द अदर 6 बिट, तो आप क्या करना, सिंपली यहाँ पे ऑल जीरोस कर देना, ऑल जीरोस हो जाएगा 6 बिट, जो भी रिमेनिंग 6 बिट है डेटा फ्रेम पे, पहले 2 को 0 जब करते हो उससे पता जब चलता है कि डेटा फ्रेम में रिमेनिंग बिट को आप 0 कर सकते हो। बट कंट्रोल फ्रेम में कैसा है, ईच दिस 6 बिट्स these 6 different types of, there are different types of control types, therefore types of control frames are there, उसके basis पे they have given 6 bit given to each and every types of controls, clear। तो उसके basis पे यहाँ पे आप bit डिफाइन कर सकते हो। पर डेटा फ्रेम पे क्या है, अगर डेटा फ्रेम होता है तब बाकी का भी 0 कर देना। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ फ्रेम कंट्रोल, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज योर डेस्टिनेशन एड्रेस एंड फिफ्थ इज योर सोर्स एड्रेस। तो ये डेस्टिनेशन एड्रेस एंड सोर्स एड्रेस क्या होता है, एज द नेम इंडिकेट डेस्टिनेशन एड्रेस एज इट इज working in your data link layer, it requires a physical address or physical address or MAC address। तो इसका किसका चाहिए एड्रेस, that is of 6 byte, that is 48 bits of destination address required। इसका उसी तरह से सोर्स का भी यहाँ पे हमें फिजिकल एड्रेस चाहिए होता है। नेक्स्ट इज द डेटा। अब ये डेटा क्या है, नॉर्मली क्या रहता है, अगर मैंने बताया था इथरनेट पे क्या था, we should follow the fulfill the condition of 46 bytes minimum। मतलब कि अगर आप डेटा एक पैकेट ट्रांसमिट एक फ्रेम ट्रांसमिट कर रहे हो, इफ इट इज बिलो 46 बाइट, तो आप क्या करते हो, आप टू फुलफिल दैट 46 बाइट बाय पेडिंग 0 0 0 0 0। बट क्योंकि उसमें डिफाइन था कि मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए। बट इन द केस ऑफ योर डेटा, इन द केस ऑफ योर टोकन रिंग, दे हैव नॉट marked any type of minimum requirement or maximum requirement। मिनिमम कितना है 0, मतलब डेटा हो ना हो डजंट मैटर, बट मैक्सिमम कितना हो सकता है, जितने टाइम तक स्टेशन टोकन को होल्ड करके रखता है। मैक्सिमम टाइम दी स्टेशन होल्ड दी टोकन, दैट इज योर मैक्सिमम ऑफ पीरियड ऑफ योर डेटा, क्लियर। मैक्सिमम बिट ऑफ योर डेटा, मैक्सिमम बाइट ऑफ योर डेटा। तो ये डेटा का मिनिमम कितना होता है 0, बट मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम टोकन होल्डिंग टाइम, जिसको क्या बोलते हो THT, मैक्सिमम टोकन होल्डिंग टाइम डेटा, क्लियर। तो दैट्स व्हाई योर डेटा इट इज ऑफ वेरिएबल साइज। तो इसका फिक्स साइज कुछ नहीं है, इट इज ऑफ वेरिएबल साइज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर CRC, it is allocated 4 bytes for the CRC and which used to check the errors in the frame, whether the frame is corrupted or not, or if the frame is corrupted then it allows frame, it just discarded that frame and allowed to retransmit it, clear। so this is the CRC। now next is the E। अब देखो, आप अगर आपने स्टार्ट फ्रेम, अगर आपने बताया कि दिस इज स्टार्ट ऑफ द फ्रेम, ये भी बताना जरूरी है कि ये आपका एंड ऑफ द फ्रेम है या और आने का, और फ्रेम का आधा पोर्शन आने का बाकी है क्या नहीं, ठीक है। तो इट डिफाइंस एंड डिलिमिटर क्या बताता है, इट यूज टू मार्क द एंड ऑफ द फ्रेम, ठीक है। तो इट ऑल्सो
contains the bit to indicate the damaged frame and identify the frame that it is the last in a logical sequence. That means what, कि ये भी बताता है कि जो ये आ रहा है that is the last frame, because के एक मैसेज का छोटे छोटे फ्रेम्स पे डिवाइड करते हो, ठीक है। तो ये भी बताता है कि ये मैसेज कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, या इस मैसेज का आधा पोर्शन आने का बाकी है। तो दिस इज योर एंड डिलिमिटर, क्लियर। नाउ लास्ट पोर्शन इज द फ्रेम स्टेटस। व्हाट इट डिफाइंस, व्हाट इट डिफाइंस फ्रेम स्टेटस क्या होता है? इट इज अ 1 बाइट। तो फ्रेम स्टेटस पे आपका सीआरसी नहीं जा लगता है कि सीआरसी नॉर्मली क्या होता है कि आप बोलते हो कि डिप्लीकेशन पैकेट्स में इसी ओरिजिनल मैसेज गया है या यहाँ पे कुछ करप्टेड मैसेज है ये। बट एफसी पे एफएस पे फ्रेम स्टेटस पे सीआरसी नहीं लगता, ठीक है, ये यहाँ पे लागू नहीं होता। सो व्हाट इट डू, आई शो यू। It is a 1 byte, so what it do, this is the 8 bit of your frame status। तो ये क्या करता है, अगर आप अरेंजमेंट देख रहे हो AC00 AC00, A हो गया अवेलेबल, C हो गया कॉपी, क्लियर। अब क्या रहता है, A अवेलेबल मीन्स व्हाट कि इट इज अवेलेबल, दैट मीन्स व्हाट आपका जो A है दैट मीन्स व्हाट योर स्टेशन इज मतलब जो भी अगर आपका जो भी आ रहा है डेस्टिनेशन अवेलेबल, एंड सी हो गया कि मैंने कॉपी कर लिया है, क्लियर। अब कैसा रहता है, यहाँ पे सीआरसी लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया है यहाँ पे कि एफसी क्या करता है कि अगर सेंडर ने कुछ डेटा ट्रांसमिट किया तो वो क्या करता है, उसको कॉपी करता है यहाँ पे उसका स्टेशन सेंडर के यहाँ पे कॉपी करता है और उसका और एक कॉपी हो AC00 लास्ट 4 बाइट पे वो और एक बार कॉपी करके रखता है उस चीज को, ठीक है। अब यहाँ पे जबकि सीआरसी लागू नहीं होता है, तो सीआरसी जब लागू नहीं होता क्योंकि उसके पास सेंडर ने जो ट्रांसमिट किया उसके पास है AC00 फर्स्ट 4 बिट्स। अब कैसा है, लास्ट 4 बिट्स में अगर चेंजेस हुआ, 00 के बदले कुछ और हुआ, दैट मीन्स व्हाट, इट इज नॉट अ ओरिजिनल वन, it is not the actual one, it is something different, clear। तो FS क्या करता है, it is a 1 byte field terminating a data frame, means what, it makes use of 2 copies। इसलिए क्या करता है, 2 कॉपी रखता है, बिकॉज यहाँ पे सीआरसी मेथड यूज नहीं होता है, लागू नहीं होता है, तो 2 कॉपी क्यों रखता है कि ताकि ओरिजिनल क्या था और उसको आया क्या है, जस्ट टू नो अबाउट इट, क्लियर। दिस इज योर फ्रेम स्टेटस। एनी क्वेरी, एनी क्वेरी, any query, yes or no? No। Now do one thing, you draw this diagram। Already you have drawn, you have also drawn this, you draw this diagram also in access control, draw this diagram, no need to write, I'll share you this PPT। Drawn everyone, drawn everyone, okay। It just an example, okay, I have shown you this example, no need to draw this, uh, draw this frame control, frame control।
Drawn, everyone? Drawn? Okay. Draw this for the drawn. Now, this is your difference between IEEE 802.3, IEEE 802.4 and IEEE 802.5. Write it down. दिख रहा है आप लोगों को? Are you able to view? आपको दिख रही है? Is it clear? Yes or no? Yes or no? Is it clear? Yes or no? Okay. Write it down. Difference is very important. I've already explained these things. Write it down. Samir Pathan, unmute yourself. Samir, unmute yourself. Samir Pathan, unmute yourself. And you are not going to put your presentee, so no need to add. Prathamesh Kulkarni, Rushikesh, you three of you are not able to present you, mark your presentee. Okay, so no need to join. Thank you so much for listening to me. Chaliye, you can go outside. Three of you, Rushikesh, Prathamesh and Samir, go outside.
Till then, mark your attendance in the chat box. In the next lecture, we'll continue with the next point. Thank you.